Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Chaube from Government Girls College, Batul. Students, I think all of you would agree with me that tense is a topic that is prescribed in almost all the classes from 8th to graduation. Still, there are so many students who don't understand tenses clearly. So, students, this desire to make you understand tenses in an easy way has brought me here. But before I start deal with this topic, I have something very important to share with you. Students, I have brought for you a very important quotation. So look at your screen. Alexander Graham Bell says, concentrate all your thoughts upon the work in hand. The sun's rays do not burn ultimate bright to a focus. So students, what does Alexander Graham Bell say? Graham Bell का कहना है कि जो कार्य आपने हाथ में लिया है उस पर अपने समस्त विचारों को केंद्रित कर दीजिए, क्योंकि सूर्य के किरणों से भी अग्नि तब तक प्रज्वलित नहीं होती जब तक कि उन्हें केंद्रित न किया जाए. Students, I think whenever we fail to understand anything, there is always a reason behind it. And I think the main reason behind it is always lack of concentration. So I would request all of you to listen to me attentively and see for yourself the power of concentration. Students, whenever we start learning anything, the first question that arises in our mind is related to the origin of the word. So the natural question that arises here is, from where the word tense has come? So students, look at your screen. The word tense comes from the Latin word tempus, meaning time. Means tense is a word that has been taken from a word, Latin word, that is tempus, and it means time. And the next question that arises is, what is the meaning of that term? So students, the meaning of tense is clear. Tense is the form of a verb which shows the time and the state of an action or an event. Now, how do tenses show the time and state of an action? Students, when I say I wrote a letter yesterday, it shows that the work was done in past. And when I say I am writing a letter, it shows that work is being done in present. And when I say I shall write a letter, it shows that the work will be done in future. And how do tenses show the state of an action? For example, students, when I say I have written a letter, this shows that the work has been completed. And when I say I am writing a letter, it shows that the work is continuous. So in this way, students, you have seen how do tenses show the time and the state of an action. Now, as all of you know, tenses are of three kinds: the present tense, the past tense, and the future tense. And students, all of you know this also, that every tense is further divided into four parts. So the present tense has the present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and the present perfect continuous tense. Similarly, the past tense also has four divisions, and the future tense also has these four divisions, as all of you know. Now let us begin with present indefinite tense. Students, so what are the helping verbs that are used in present indefinite tense? So you find here on your screen that in present indefinite tense, students, first form of the verb is used, or S or ES is added to the verb. And if we make the sentences in the present indefinite tense negative or interrogative, do or does is the helping verb that is used. And in past indefinite tense, students, second form of the verb is used. And for making sentences negative in past indefinite tense, did is the helping verb that is used. Students, in future indefinite tense, first form of the verb is used. And what are the helping verbs that are used in future indefinite tense? As you know, will or shall is the helping verb that is used in future indefinite tense. All of you know about all these things.
Now let us take some examples of present indefinite tense. In the first sentence you see here, first sentence is he sings a song. Students, as you see here that S is added to the verb sing. And in other sentences, S is not added to the verb sing. So what's the rule behind it? Students, as you know, if the subject is third person singular, S is added to the verb. And if the subjects are other than third person singular, we do not add S or ES to the verb. That's why you find here in the first sentence S added to the verb, and you do not find S added to the verb in other sentences. So the second sentence becomes they sing a song. Next one, you sing a song, I sing a song, and we sing a song. And if we have to convert these sentences into negative, what's the helping verb we can use? Students, as you know, do or does is the helping verb that is used in the present indefinite tense. So where should we use do and where should we use does? So if the subject is third person singular, students, does will be used, and if the subject is other than third person singular, do will be used. So if we want to convert the first sentence into negative, it would become he does not sing a song. And if we have to change other sentences into negative, they would become they do not sing a song, you do not sing a song, I do not sing a song, and we do not sing a song. So students, I think you have understood that if the subject is third person singular, we add S or ES to the verb. And if we have to make these sentences negative, do or does are the helping verbs that are used with them. If the subject is third person singular, does is used, and if the subject is other than third person singular, do is used. Now we come to past indefinite tense. Students, since you have learned all these things in your previous classes, you might be knowing all these things. Still, it's a kind of revision. In the past indefinite tense, as you know, second form of verb is used. As you find here, he sang a song. So sang, as you know, is the second form of verb sing. What's the third form? Sung is the third form of the verb sing. In past indefinite tense, as you know, second form of verb is used. That's why the first sentence has become he sang a song yesterday. And next one, they sang a song yesterday. You sang a song yesterday. I sang a song yesterday. And we sang a song yesterday. Whether the subject belongs to third person singular or any subject, second form of verb is used. And if we have to convert these sentences into negative, what's the helping verb that we should use? As you know, students, did is the helping verb that is used while making these sentences negative or interrogative negative. Now we come to future indefinite tense. So you find here the helping verbs are will or shall. So you might be knowing where we use will and where we use shall. As you know, shall is used with first person subject and will with other subjects. You also know that first person means I or we, and second person means you, and third person he, she, it, they, or name of any person. So that's why you find here he being third person, will is used with he. He will sing a song. They will sing a song tomorrow. You will sing a song tomorrow. I shall sing a song tomorrow. And we shall sing a song tomorrow. With I and we, shall is used because shall is used with first person subject. Now students, what are the situations or conditions where we can use present indefinite tense? For example, you find the first example, to express habitual actions and actions repeated at irregular intervals. उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो आदतन किए जाते हो या फिर जो नियमित अंतराल पर बार बार जिनकी पुनरावृत्ति हो. जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं. ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, डेली, ये एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में बच्चों करते हैं. इसलिए आप देखिए यहाँ उदाहरण है, he gets up early in the morning, they go for a morning walk daily, you play cricket regularly,
आई रीड द गीता डेली। यहाँ आप ऐसे कार्यों को देख रहे हैं जो आदतन किए जाते हैं या फिर जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती हो। और साथ में आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में अक्सर, ऑलवेज, यूजुअली इत्यादि का प्रयोग भी होता है। अब हम देखेंगे और कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ। बच्चों, सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण में देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है। आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो राइज वर्ब है उसके साथ में एस का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर एस का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि जो सन है वो क्या है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है? इस थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब जो यूज होता है उसके साथ में एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द गैंगेज राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। ये भी एक जनरल फैक्ट है जिसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। और कौन सी परिस्थितियां हैं बच्चों, अब देखेंगे। यूज्ड फॉर द हिस्टोरिकल प्रेजेंट टू ब्रिंग पास्ट इवेंट्स मोर विविडली बिफोर द हियरर और द रीडर। देखिए बच्चों, ऐतिहासिक वर्तमान इसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल की घटनाओं को श्रोता या फिर पाठक के सामने और ज्यादा सजीव रूप से उपस्थित करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, as soon as Ram puts his foot on the rock, it turns into a beautiful woman. जैसे ही राम अपनी चरण शिला पर रखते हैं वह एक खूबसूरत स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। इसमें आप देखें कि भूतकाल की एक घटना को व्यक्त करने के लिए बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है, जिससे ये घटना हमारे सामने और ज्यादा सजीव रूप से उपस्थित हो जाती है। हम और उदाहरण लेंगे बच्चों। As soon as Sita takes the ring in her hand, she at once recognizes it. जैसे ही सीता अपने हाथ में मुद्रिका लेती हैं, वह उसको तुरंत पहचान लेती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर आप टेक्स से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है। यह भी एक भूतकाल की घटना है जिसे बहुत ही ज्यादा सजीव रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए और कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। किसी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। देखिए, विवेकानंद जी क्या कहते हैं। All the powers in the universe are ours. It's we who have put our hands before our eyes and cry that it's luck. इस ब्रह्मांड की सारी ताकतें हमारी हैं। हम ही हैं जो अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं और फिर विलाप करते हैं कि अंधेरा है। So this is a quotation, and for introducing this quotation, present simple tense is used. And as you find here, s is added to the verb say here. Now another quotation, students. Look at your screen. The Maharshi says, "O Goddess Saraswati, how wonderful your treasure is. It increases if spent and decreases if stored." हे माँ सरस्वती, आपका जो खजाना है वो कितना अद्भुत है। यह व्यय करने से बढ़ता है और संचय करने से घटता है। बच्चों, आपने संस्कृत में श्लोक सुना होगा ना, अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वैतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए और कौन सी परिस्थितियां हैं। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट और एक्शन दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम, प्लान एंड अरेंजमेंट। किसी भविष्य की किसी ऐसी घटना के कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि किसी निश्चित कार्यक्रम, योजना या व्यवस्था का भाग हो। जैसे कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। और आप जान रहे हैं बच्चों कि मैच जो है आगे भविष्य में होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया है। अब आप देखिए, द कॉलेज रीओपन्स ऑन 1st of July। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के जो हिस्सा है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग बच्चों किया जाता है।
और ये लास्ट एक परिस्थिति है जहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। विस्मयादि बोधक वाक्यों के साथ में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है जब उनके साथ में हियर और देयर का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि हियर कम्स अविनाश, देयर शी गोज। तो आपने यहाँ बच्चों कुछ परिस्थितियां देखी जहाँ के आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। देखिए कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। To indicate some activity or event having taken place at a particular point or period of time in the past. किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में किसी निश्चित समय या फिर अवधि में संपन्न हुआ हो। जैसे आप उदाहरण में बच्चों देख रहे हैं, I went to विश्वनाथ टेम्पल लास्ट मंडे। मैं पिछले सोमवार को विश्वनाथ मंदिर में गई थी। तो ये कार्य कब हुआ? भूतकाल में संपन्न हुआ। तो भूतकाल में संपन्न किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए बच्चों पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम और उदाहरण देखेंगे। I worked hard during the last examinations. पिछली परीक्षा में मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। इसमें आप देख रहे हैं कि बात कब की है? लास्ट एग्जामिनेशन की। मतलब भूतकाल में ये कार्य संपन्न हुआ, कठिन परिश्रम मैंने किया, उसे व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ। और आप कैसे पहचान रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए I worked hard. Worked is the second form of work. वर्क की सेकेंड फॉर्म वर्कड यहाँ पर है, इससे आप इसको पहचान पा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव इसको बनाना होता तो क्या करते बच्चों? I did not work hard। जब आप did not लगा देते तो आप वर्क के साथ में ed नहीं लगाते, तब आप वर्क की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते। हम आगे और बात करते हैं। देखिए और कौन सी परिस्थिति है जहाँ पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है बच्चों? To express habitual or regular actions in the past time. भूतकाल में आदतन किए जाने वाले कार्यों या फिर नियमित किए जाने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे he never told a lie in his life। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। He went to the temple daily। वह रोज मंदिर जाया करता था। तो भूतकाल के ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कि आदत में शुमार हो या नियमित रूप से किए जाते हों, उन्हें व्यक्त करने के लिए भी बच्चों पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे बच्चों। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को या ऐसे कार्य को व्यक्त किया जाता है जो कि भूतकाल में संपन्न होंगे। जैसे I shall finish my work tomorrow। कल मैं अपना काम पूरा करूंगी। He will go in half an hour। वो आधे घंटे में जाएगा। इसमें कार्य भविष्य काल में संपन्न होगा। तो भविष्य काल में संपन्न होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे बच्चों, अभी हमने बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो शैल का प्रयोग करना है और इसके अलावा विल का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां हम इस प्रयोग के नियम को पलट देते हैं। मतलब जहां हमें शैल का प्रयोग करना था वहां हम विल का प्रयोग करते हैं और जहां विल का प्रयोग करना था वहां पर शैल का प्रयोग करते हैं। तो वो कैसे कंडीशंस होंगे? जैसे अगर हमें कोई कमांड देना हो, कोई आदेश देना हो, कोई थ्रेट धमकी देनी हो, कोई विलिंगनेस व्यक्त करनी हो, इच्छा व्यक्त करनी है, प्रॉमिस करना है, या फिर डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? जहाँ यू विल नॉट स्टील की जगह पे हमने क्या कर दिया? यू शैल नॉट स्टील। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दैट। आई शैल की जगह आई विल कम विद यू। हमारी इच्छा विलिंगनेस व्यक्त हो रही है। आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगली बार मैं बेहतर करूंगा। आई सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट। मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा और सफल होऊंगा। तो इसमें आपने ये देखा कि हम अगर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करना चाहें बच्चों तो भी हम आई शैल की जगह आई विल का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे जो सबसे आसान टेस्ट जो टेंस बच्चों को लगता है वो होता है कंटिन्यूअस। सभी लोग उसको बहुत आसानी से इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं। So students, as you find here, now we should talk, I think, about the helping verbs that are used in present continuous tense. As you find on your screen, students, is MR
These are the helping verbs that are used in present continuous tense. As you know, an ing is added to the verb. In past continuous tense, was or were is used. An ing again is added to the verb. And in future continuous tense, will be or shall be is used, and ing is added to the verb. What is the similarity that you find in all these three sentences, students? The one simple thing is that ing is added to the verb in all these tenses. इन तीनों में ही बच्चों आप एक बहुत समान चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों में ही वर्ब के साथ में ing का प्रयोग हुआ है। बच्चों, जब कभी मैं अपनी कक्षा में बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चों कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण दो, और अगर बच्चे कहने लगते हैं कि आई गो टू मॉर्निंग वॉक, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी से बात कहना चाहती हूँ, और ये सच है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों जिन्हें की टेंस बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं चाहती हूँ वो लोग ध्यान से सुने। जब भी आप कहीं बच्चों कंटिन्यूअस वर्ड देख लें, तो आपको अगर कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाना है, तो आपको एक बात अपने मन में जरूर ध्यान रखनी है कि आपको वहां पर वर्ब के साथ में ing का प्रयोग करना है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो भी ing, पास्ट कंटिन्यूअस है तो भी ing, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो भी ing। और आप आगे अभी हम जब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, बच्चों तो भी आप देखेंगे कि जहां भी कंटिन्यूअस है वहां पर उसके साथ में बच्चों आपको ing जरूर दिखेगा। तो टेंस के बच्चों बहुत थोड़े से ही नियम है, और उन थोड़े से नियमों को अगर हम लोग सीख लें तो हमें कभी भी कंफ्यूजन टेंसेस में नहीं होगा। तो हम लोग फिर से बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस की। तो आपने देखा इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम और आर, these are the helping verbs. In past tense was, were. In future continuous will be or shall be. अब हम कुछ sentences लेंगे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों present continuous tense के कुछ examples. He is singing a song. Now helping verb, as you know, is, am, are the helping verbs that are used in present continuous tense. And is used with singular subject and are with plural. And as you know, am is used with I. ये बातें बच्चों सबको बहुत अच्छे से मालूम है, तो इसीलिए सेंटेंसेस ऐसे बने, he is singing a song, they are singing a song, you are singing a song, I'm singing a song and we are singing a song. अगर हमें इन सबको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना हो, बहुत आसान है, आपको सबको आता है। He was singing a song yesterday. अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज हो गए, was या were। सिंगुलर के साथ में was और प्लूरल के साथ में were। They were singing a song. You जैसे आप मालूम है आप सबको, you के साथ में हमेशा प्लूरल क्रिया का प्रयोग होता है, तो you were singing a song। हमने देखा था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही थी तो you are, आप एक से भी हमें बात करना होगा तो भी हम कैसे बात करते हैं, you are। आप अकेले भी हैं तो भी you are, क्योंकि you के साथ में हमेशा बच्चों प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम देखें, I was singing a song yesterday and we were singing a song yesterday। तो नियम कौन सा है, यह है कि was का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और were का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। और आपने प्रेजेंट में देखा था कि I के साथ में am का प्रयोग था और पास्ट में I के साथ में was का प्रयोग है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस की। कौन से हेल्पिंग वर्ब है, will be और shall be। ये इन दोनों में से हमको किसी का प्रयोग करना होता है, and as you know, shall be is used with first person and will be with second person and third person subject। तो I और we के साथ में shall be का प्रयोग आप यहाँ देख रहे हैं, और he, they, you के साथ में आप will be का प्रयोग देख रहे हैं। आप सबको ये अच्छे से आता है। He will be singing a song tomorrow, they will be singing a song tomorrow, you will be singing a song tomorrow, I shall be singing a song tomorrow and we shall be singing a song tomorrow। ये सब चीजें आपको मालूम है बच्चों, एक रिवीजन इसको मान के चलें। अब हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की बच्चों जहाँ की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखिए, फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात की जा रही है उस समय जो कार्य जारी हो, वर्तमान में जो कार्य जारी है उसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ देखें उदाहरण में, आई एम स्पीकिंग, यू आर सिटिंग इन द वर्चुअल क्लासरूम, यू आर लिसनिंग टू मी। ये सभी कार्य वर्तमान में जारी हैं,
इन्हें व्यक्त करने के लिए आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। और आप कैसे पहचान रहे हैं बच्चों की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? बिकॉज am, are, these are the helping verbs that are used here, and as you find here, ing is added to the verb here. सभी क्रियाओं में ing का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। For a temporary action which may not be happening at the time of speaking, बच्चों अभी हमने बात किया कि जो कार्य वर्तमान में चल रहा है या हम जब बोल रहे हैं उस समय जो कार्य चल रहा है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि बोलते समय में जो कार्य न भी चल रहा हो लेकिन फिर भी अस्थायी रूप से जो कार्य इन दिनों चल रहा हो उनको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों करते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग द रामचरितमानस दीज डेज, इन दिनों में रामचरितमानस में पढ़ रही हूँ। तो बच्चों जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय मैं रामचरितमानस नहीं भी पढ़ रही हूँ, परंतु तो भी चूंकि ये कार्य वर्तमान में जारी है इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। जैसे माय फादर इज राइटिंग अ बुक, हो सकता है वो इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कार्य न भी चल रहा हो, लेकिन चूंकि इन दिनों मेरे पिता एक किताब लिख रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों किया। देखिए और एक उदाहरण लेते हैं। फॉर अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन और जनरल हैबिट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, बार बार दोहराए गए किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए या फिर किसी जनरल आदत को व्यक्त करने के लिए जिससे कि असहमति या फिर आलोचना के भाव व्यक्त हो रहे हों। कैसे देखेंगे बच्चों? शी इज ऑल द टाइम बोस्टिंग ऑफ हर ओन नॉलेज, वह हर समय अपने ज्ञान की शेखी बघाड़ती रहती है। इसमें आप देखें बच्चों, एक बात क्या है कि इस कार्य को बार बार रिपीट किया जाता होगा तभी हम कह रहे हैं कि हर समय अपने ज्ञान की शेखी बघाड़ती रहती है। और दूसरी बात क्या है, इससे कहीं न कहीं असहमति या आलोचना के भाव व्यक्त हो रहे हैं। जो वक्ता है उसके मन में इस बात के प्रति आलोचना है, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, तो एक असहमति और आलोचना के भाव व्यक्त करने के लिए किस कार्य के संबंध में जो कि बार बार दोहराया गया हो उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। हिज फ्रेंड्स आर ऑलवेज मिसबिहेविंग, उसके फ्रेंड्स हमेशा दुर्व्यवहार करते रहते हैं। ये भी एक फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन है, बार बार दोहराया जाने वाला कार्य है या फिर एक सामान्य आदत है जिसके प्रति वक्ता के मन में असहमति या फिर आलोचना के भाव व्यक्त हो रहे हैं। देखिए, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में कोई कार्य होने वाला है और उसको हमने पहले से अरेंज कर लिया, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू एंगेज अनदर क्लास टुमारो, कल मैं दूसरी क्लास लेने वाली हूँ। माय मदर इज अराइविंग टुमारो, काम कब होना है? भविष्य में। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये पूर्व निर्धारित कार्य है, इसको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। अब देखिए उदाहरण क्या है और कौन सी परिस्थितियां हैं। सम एक्टिविटी इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, भूतकाल में जारी किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए। बच्चों एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव टेंस है तो मान लीजिए उसमें कार्य जारी रहने की जो भाव है वो व्यक्त हो रहे होंगे। जैसे आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल लास्ट ईयर, पिछले साल में एक नॉवेल लिख रहा था। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है? आई एम राइटिंग अ नॉवेल, और पास्ट में आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल, और साथ में इस तरह के लास्ट ईयर समय के भूतकाल को व्यक्त करने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग भी आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे द गर्ल वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, कल बच्ची किताब पढ़ रही थी। तो इसमें आपने देखा कि भूतकाल में जारी रहने वाले एक कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग होता है। देखिए और कौन सी परिस्थितियां हैं बच्चों। एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, भूतकाल में जारी किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जबकि उसी समय कोई दूसरा कार्य भी संपन्न हुआ। अब यहाँ उदाहरण देखेंगे। द बस वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज व्हेन सडनली एन ओल्ड मैन केम इन फ्रंट ऑफ द बस, बस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति बस के सामने आ गया।
तो भूतकाल में जारी एक कार्य कौन सा है? द बस वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। और उसी समय दूसरा कौन सा कार्य हुआ? सडनली एन ओल्ड मैन केम इन फ्रंट ऑफ द बस। तो भूतकाल में जारी किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जबकि तभी दूसरा भी कार्य एक संपन्न हुआ, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे। आई वॉज लर्निंग माई लेसन व्हेन माई फ्रेंड केम। मैं अपना पाठ याद कर रही थी, तभी मेरी मित्र आई। तो आपने देखा कि भूतकाल में जारी किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए जबकि दूसरा कोई कार्य भी उसी समय संपन्न हुआ हो, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों करते हैं। देखिए अब और उदाहरण। 2 or more actions going on at the same time। साथ साथ में बच्चों अगर दो कार्य जारी हो भूतकाल में, उन्हें व्यक्त करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें, while I was teaching in the classroom, 2 students sitting on the last bench were talking to each other। जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रही थी तो 2 बच्चे जो पीछे की बेंच पर बैठे थे वो आपस में बात कर रहे थे। तो आपने देखा यहाँ साथ साथ में 2 काम हो रहे हैं। एक तो मैं क्लास में पढ़ा रही थी और दूसरा 2 बच्चे लास्ट बेंच पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। तो आपने देखा कि 2 साथ साथ संपन्न होने जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। While Saita was reading, Rajan was playing। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 कार्य साथ साथ जारी हैं और इनको व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों आपने यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। It's used to express some action or event that is expected to be in progress at certain time in future। इसमें ऐसे कार्य को व्यक्त किया जाता है जो कि भविष्य में एक निश्चित समय पर जारी रहेगा। देखिए जारी रहने का भाव यहाँ पर भी है और चूंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसमें कार्य कब जारी रहेगा? भविष्य में जारी रहेगा। उदाहरण देखते हैं। I shall be teaching my students at 7 in the morning। अब कोई भविष्य को बताने वाला उसमें शब्द भी होगा, जैसे यहाँ पर है कि 7 सुबह 7 बजे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होंगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस है इसलिए आपको आईएनजी दिखाई पड़ रहा है इसमें, और फ्यूचर है इसलिए बच्चों आपको यहाँ पर शैल भी दिखाई पड़ रहा है। और शैल भी क्यों दिखाई पड़ रहा है, विल भी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ पर ही होता तो ही विल बी टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाता। तो बहुत बच्चों थोड़े से ही नियम है जिनको अगर मन में ध्यान रख लिया जाए तो टेंस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब हम बात करेंगे और उदाहरण की। फॉर एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम। भविष्य के कुछ ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कि पूर्व नियोजित हैं या फिर समय के साथ में संपन्न होंगे। जैसे ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंडे, वो हमें नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। और न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अराइविंग इन जुलाई, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है, जैसे ही जुलाई आएगी वैसे ही नए बैच स्टूडेंट का नया बैच आएगा। तो भविष्य में ऑलरेडी प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस को व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बच्चों करते हैं। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। सारी के सारे टेंसेस बच्चे इतने आसान हैं। अब आप देखें यहाँ पर परफेक्ट की पहचान कितनी आसान है। Whenever we use perfect tense, there is always a helping verb has, have or had। आपको मालूम है has is used with third person singular subject and have with other subjects। आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर has या have का प्रयोग है and everywhere you find in present perfect tense third form of the verb is used। तीनों ही जगह देखिए बच्चों थर्ड फॉर्म यूज है। पास्ट परफेक्ट में वहाँ पर प्रेजेंट में हैज हैव था, पास्ट में हमने उसको हैड कर दिया और थर्ड फॉर्म जैसे वहाँ थी वैसे ही यहाँ पर भी है। फिर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर आपको हैव का प्रयोग देखने को मिल रहा है और परफेक्ट जब भी है तो देखिए थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है और इसलिए फ्यूचर को शो करने के लिए भी किसी जरूरत थी ना शब्द की, तो इसलिए यहाँ पर विल और शैल का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होता है। और बहुत ही आसान एक बात है पहचानने के लिए, एक तो हैज हैव हैड में से कुछ न कुछ होगा और दूसरा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ही हैज सung a song, आप देखा आपने यहाँ पर हैज का प्रयोग। और एक ही नियम याद रखना है, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो हमने याद किया था ना बच्चों प्रेजेंट सिंपल के समय में
कि कहाँ पर हमको एस या एस लगाना है, वही नियम यहाँ पे काम कर रहा है। वहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वहाँ पर डूडस लगाते थे और या एस या एस का प्रयोग करते थे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता था, और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर ही हैज संग अ सॉन्ग, और बाकी सब्जेक्ट्स क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है उनके साथ में हैव का प्रयोग है। देखिए दे हैव संग अ सॉन्ग, यू हैव संग अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग एंड वी हैव संग अ सॉन्ग। एंड देखिए यहाँ पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म संग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, देखिए कितना आसान है। इसी को अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना हो बिल्कुल आसान, यहाँ तो फिर भी कम से कम सोचना पड़ रहा है कि कहाँ हैज लगाओ कहाँ हैव लगाओ, वहाँ तो सिंपल सिर्फ हैड का प्रयोग कर देंगे। He had sung a song. अब कोई भी सब्जेक्ट हो, they had sung a song, you had sung a song, I had sung a song, we had sung a song. फ्यूचर परफेक्ट में बहुत आसान, will have, अब परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर आपको have देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर है इसलिए will shall लगाएंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि फ्यूचर है। अब देखिए will have और shall have, ये नियम फिर वही वाला पुराना वाला नियम यहाँ भी काम करेगा। will और shall के बारे में, shall कहाँ लगाना है, shall is used with first person। फर्स्ट पर्सन माने आई और बी, और सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर आई और बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का हमेशा आप जानिए कि परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ परिस्थितियां भी तो देखनी है कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। देखिए टू इंडिकेट एक्टिविटीज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट विच जस्ट, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल तत्कालिक भूतकाल में मतलब अभी अभी कंप्लीट हुए हैं जो कार्य, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बच्चों करते हैं। जैसे कि आई हैव जस्ट टेकन माय ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अभी अपना नाश्ता लिया है। तो देखिए आपने यहाँ जस्ट का प्रयोग भी यह इंगित कर रहा है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। आपने देखा हैव का प्रयोग है, और हमने कहा था अभी कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर आई हैव जस्ट टेकन, टेकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेक। अब और देखते हैं उदाहरण, to express a past action with current relevance or whose result is felt in the present, भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसका वर्तमान में जिसकी प्रासंगिकता हो या फिर जिसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा हो। जैसे आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स खो गया है। यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वर्तमान में उसका प्रभाव परिलक्षित होगा। जैसे बहुत से प्रभाव परिलक्षित हो सकते हैं, उनमें से एक प्रभाव कौन सा है, जैसे कि आई एम अनएबल टू बाय द बुक, अब मैं किताब खरीदने में असमर्थ हूँ। तो भूतकाल का कोई ऐसा कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान में भी परिलक्षित हो रहा हो, दिखाई पड़ रहा हो। He has found a job, उसको एक जॉब मिल गया। अब क्या होगा, He need not worry about his career, उसे अपने करियर के बारे में चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। तो भूतकाल का एक ऐसा कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान में दिखाई पड़ रहा हो या फिर जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता हो, वर्तमान से वो किसी न किसी तरह से जुड़ा हो, हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन whose time is not given and not definite, भूतकाल के किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसका कि समय दिया नहीं गया हो या फिर निश्चित नहीं हो। जैसे कि आई हैव रेड द श्रीमद् भगवद गीता, मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। इसमें यहाँ समय का उल्लेख नहीं है, कब पढ़ी है इसका उल्लेख नहीं है, मैंने कभी भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। इसको व्यक्त करने के लिए यहाँ आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बच्चों किया गया है। अगर हमें ये कहना हो कि मैंने पिछले साल श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, तब हम कैसे कहेंगे, तब हमें कहना होगा आई रेड द श्रीमद् भगवद गीता लास्ट ईयर। तब हम यहाँ पर पास्ट सिंपल टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे जब हमने वहाँ पर समय का उल्लेख कर दिया कि पिछले साल। और अगर हमने पिछले साल ऐसा वर्ड ना कह के ऐसे कहना है कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, तो हम कैसे कहेंगे, आई हैव रेड द श्रीमद् भगवद गीता। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन इन द पास्ट, एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि किसी दूसरे कार्य के पूर्व संपन्न हुआ हो। जैसे कि यहाँ देखें, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड गॉन, जब तक डॉक्टर आया तब तक पेशेंट जा चुका था। तो भूतकाल का एक कार्य
उसके भूतकाल में किसी कार्य के पूर्व कार्य जो संपन्न होगा। दो कार्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों। एक तो क्या है, डॉक्टर का आना, और दूसरा कौन सा काम है, पेशेंट का जाना। तो जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, तभी आप देख रहे हैं द पेशेंट हैड गॉन। और दूसरा काम कौन सा है, डॉक्टर का आना, ये कार्य बाद में है, इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग देखने को मिल रहा है। चलिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में एक निश्चित समय के पूर्व संपन्न कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आई हैड रिटन माई आर्टिकल बाय 10 o'clock, 10 बजे तक मैं अपना आर्टिकल लिख चुकी थी। तो भूतकाल के किसी दूसरे कार्य के पूर्व संपन्न कार्य को व्यक्त करने के लिए, या फिर भूतकाल में एक निश्चित समय के पूर्व संपन्न किए गए कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। Actions that are expected to be completed by a certain time in future, भविष्य में एक निश्चित समय से पूर्व जिनके संपन्न होने की संभावना हो, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए। जैसे by the end of next year, आशुतोष will have completed his BTech, अगले साल के समाप्ति के पहले पहले या समाप्ति तक में आशुतोष जो है अपना बीटेक कंप्लीट कर लेगा। तो एक भविष्य काल में एक निश्चित समय के पूर्व संपन्न कार्य को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन इन फ्यूचर, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भविष्य में किसी दूसरे कार्य के पूर्व संपन्न होंगे। जैसे कि यू विल हैव रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रिंग्स, आप घंटी बजने से पहले कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो पहले कौन सा काम होगा, आप कॉलेज पहुंच जाएंगे। उसमें आपने कौन सा टेंस का प्रयोग देखा, विल हैव रीच्ड फ्यूचर परफेक्ट का। और घंटी बजने के पहले जहां आप लिख रहे हैं वहां पे आप देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है, बेल रिंग्स। अब हम लास्ट में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है, परफेक्ट इसलिए हैज का प्रयोग, हैड का प्रयोग, हैव का प्रयोग जरूरी है। और कंटिन्यूअस है, हमने शुरू में ही कहा था जो भी टेंस कंटिन्यूअस होगा उसमें वर्ब के साथ में आईएनजी होगी। तो आप देखते हैं बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन इज यूज्ड एंड आईएनजी इज एडेड टू द वर्ब। इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन इज यूज्ड एंड आईएनजी इज एडेड टू द वर्ब। एंड इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, as you know, will have been or shall have been is used and ing is added to the verb. Now, few examples of present perfect continuous. He has been singing a song. As you know, students, has is used with थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड हैव विद अदर सब्जेक्ट्स। आप जानते हैं हैज बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी के साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा और आईएनजी वर्ब के साथ में देखने को मिलेगी। इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में करना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हैज बीन की जगह हैड बीन का प्रयोग, दे हैड और ही हैड बीन सिंगिंग एक्सेट्रा, इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो बच्चों ही विल हैव बीन सिंगिंग और आई शैल हैव बीन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ में, आई और वी के साथ आप देख रहे हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग, शैल हैव बीन का प्रयोग देखने को मिलेगा। और फर्स्ट पर्सन के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों उनके साथ में आपको विल हैव बीन का प्रयोग देखने को मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट है, हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जारी है। जैसे ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 hours, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। काम शुरू कब हुआ है, 5 घंटे पहले। देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसमें क्या होता है, ही इज स्टडीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 hours। कितना अंतर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य वर्तमान में जारी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और तब से लेकर अब तक जारी है। तो आपने यहाँ पर उसका उदाहरण देखा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट एंड वाज कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में किसी निश्चित समय के पूर्व प्रारंभ होकर उस समय तक जारी रहा। जारी रहने का भाव इंपॉर्टेंट है और भूतकाल में ही किसी निश्चित समय या फिर किसी दूसरे कार्य के पूर्व प्रारंभ होकर उस समय तक जारी रहा। जैसे when Dr. Sharma left our college in 2010, he has been teaching here for 5 years. जब डॉक्टर शर्मा ने हमारे कॉलेज को 2010 में छोड़ा तो यहाँ पर वो कितने साल से पढ़ा रहे थे, 5 years से पढ़ा रहे थे।
और एक और एग्जाम्पल, when the new principal arrived in 2013, the earlier one had been working here for 10 years. जब नए प्रिंसिपल आए 2013 में तो पुराने 10 साल से पढ़ा रहे थे। तो भूतकाल में एक निश्चित समय के पूर्व कार्य प्रारंभ हुआ और उस निश्चित समय तक जारी रहा। इसे व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। used for actions that will be in progress over a period of time leading up to a certain time in future. ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में एक निश्चित समय तक जारी रहेगा। जारी रहने का भाव इंपॉर्टेंट है और इस निश्चित समय के पूर्व जारी रहना है। जैसे कि by April 2015 I shall have been working in higher education department for 21 years. 2015 तक मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21 ईयर्स से कार्य कर रही होंगी। लास्ट एग्जाम्पल, by tomorrow morning I shall have been learning my lesson for 8 hours. कल सुबह मैं अपना पाठ 8 घंटे से याद कर रही होंगी। तो भविष्य में एक निश्चित समय तक कार्य जारी रहेगा। इसे व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बच्चों प्रयोग किया गया। अब थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मुझे यकीन है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कंसंट्रेट होना है, कंसंट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद क्यों, विश्वास है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और अब आप इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है। हैज हैव, डू डज, विल शैल और वाज वर। तीनों में से बच्चों बताइए कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? गवर्नमेंट कॉलेज नेपाल। हाँ बेटा बताइए। डू डज। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। डू डज इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the present indefinite tense s or es is added to the verb if the subject is, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वेरी गुड, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। Which helping verb is used in the past simple tense? Past simple tense में कौन से helping verb का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बच्चों? डिड का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। बैठिए, डिड सही आंसर है। The helping verb shall is used in the future simple tense if the subject belongs to। शैल का प्रयोग हम कब करें? सब्जेक्ट कौन से पर्सन का होगा तो शैल का प्रयोग होगा? बताइए इसमें से। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आपने बताया। बैठिए। ing added to the verbs denotes that the tenses, अगर टेंस में ing, अगर किसी वर्ब में ing जुड़ा हो तो बच्चों हमें क्या मालूम पड़ता है कि टेंस क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गवर्नमेंट कॉलेज नसूलगंज। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ओके, कंटिन्यूअस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम प्रयोग करते हैं कौन से टेंस में? इनकी ये जो चार ऑप्शन बताना है आपको। पास्ट सिंपल टेंस। वेरी गुड, पास्ट सिंपल टेंस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बताया आपने, पास्ट सिंपल टेंस सही आंसर है। बैठिए। थैंक्स अ लॉट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और टेंस के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे मुझे पूरा यकीन है कि आप उन्हें सब सही उसका आंसर देंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू वेरी मच।